ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت وادی میں جادوئی مخلوق پریاں لہتی تھیں۔ ان پریوں کی دنیا رنگین، خوشبودار پھولوں اور چمکتے ہوئے ستاروں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر پری کی اپنی ایک خاص طاقت تھی اور وہ سب مل کر وادی کو خوشحال بناتی تھیں۔ وادی کے درمیان ایک عجیب درخت کھڑا تھا۔ وہ درخت باقی درختوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کے پتے نہ سبز تھے اور نہ کبھی انہوں نے خزاں دیکھی تھی، بلکہ اس کے پتوں کا رنگ چاندنی کی طرح سفید تھا۔ درخت کی چھال سونے جیسی چمکدار تھی اور اس کی جوئیں گہرے نیلے رنگ کی دکھتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ درخت دنیا کا سب سے قدیم درخت ہے اور اس کے بارے میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ پریوں کے درمیان ایک نیک دل پری لالا تھی جو ہمیشہ نئی چیزوں کو دریافت کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ وہ اس درخت کے بارے میں بہت سن چکی تھی اور اس کی خاصیتوں کو جاننا چاہتی تھی۔ ایک دن لالا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کا راز کھولے گی۔ لالا نے اپنی چھوٹی سی پنس والی قاصد پریوں کو بلایا اور ان کے ساتھ درخت کی طرف روانہ ہوئی۔ درخت کے قریب پہنچتے ہی ایک عجیب سی روشنی درخت سے نکلنے لگی جو ساری وادی کو روشن کرنے لگی۔ لالا نے درخت کے قریب جا کر اس کی چھال کو چھوا اور اچانک ایک سرگوشی سنائی دی، جو بھی میرے راز کو سمجھے گا اسے دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ملے گا۔ لالا نے دل میں سوچا کہ یہ راز کیا ہو سکتا ہے۔ وہ درخت کی جڑوں کے قریب بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جادوئی دروازہ نمودار ہوا۔ لالا نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک عجیب سی دنیا تھی جہاں درخت کی شکل کے قلعے اور جھیلیں تھیں۔ یہاں کے رنگ اور روشنی اتنی دلکش کی کہ لالا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس دنیا میں ایک بزرگ پری زہرا بھی رہتی تھی جو درخت کی محافظ تھی۔ زہرا نے لالا کو خوش آمدید کہا اور کہا، تم نے درخت کے راز کو دریافت کیا ہے۔ تمہیں ایک طاقت ملے گی جو تمہاری دنیا میں خوشی، سکون اور محبت پھیلائے گی۔ زہرا نے لالا کو ایک جادوئی کمر بند دیا جو درخت کی طاقت کو اس کی ذات میں منتقل کرتا تھا۔ اس کمر بند کی طاقت سے لالا نے اپنی پریوں کی دنیا میں امن و سکون قائم کیا۔ وہ ہر پری کی مدد کرتی اور ہر مشکل حل کرتی۔ اب لالا کی مدد سے وادی کی ہر پری خوشحال تھی اور عجیب درخت کا راز دنیا بھر میں پھیل گیا تھا۔ درخت کا راز صرف اتنا تھا کہ محبت، ایمان اور ہمت سے مشکلات کا سامنا کیا جائے تو کوئی بھی دنیا کا راز کھولنا ممکن ہے، اور اس طرح پریوں کی جادوئی دنیا میں خوشی کا رنگ ہمیشہ کے لیے قائم رہ گیا۔ لالا کی طاقت اور حکمت کی بدولت وادی میں ایک نئی روشنی آ چکی تھی۔ پریوں کے دلوں میں خوشی تھی اور ہر ایک کی زندگی میں سکون تھا۔ لالا نے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال صرف دوسروں کی مدد کے لیے کیا۔ وہ ہر پری کی مشکلات حل کرتی، چاہے وہ پریاں ہوں جو خوف کا شکار تھی وہ جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب لالا درخت کے قریب جا کر بیٹھ کر اپنے جادوئی کمر بند کی طاقت سے پریوں کی مدد کر رہی تھی، اسے ایک اور راز معلوم ہوا۔ درخت کے نیچے ایک اور دروازہ چھپا ہوا تھا۔ یہ دروازہ ایک اور دنیا کی طرف لے جاتا تھا، ایک ایسی دنیا جو وادی سے بھی زیادہ جادوئی اور پراسرار تھی۔ لالا نے اپنے ساتھ ایک گروہ بنایا جس میں اس کی سب سے قریبی دوست پریاں بھی شامل تھی، اور وہ اس نئے دروازے کے ذریعے اس نئی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ نئی دنیا ایک خوبصورت اور انوکھے انداز میں چھپی ہوئی تھی، جہاں وقت اور جگہ کی حقیقت بھی بدل چکی تھی۔ وہاں کا ہر منظر رنگین تھا اور ہر درخت، پھول اور دریا زندگی کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں رہنے والی مخلوق بھی پریوں سے مختلف تھی، اور وہ سب ایک خاص مقصد کے لیے وہاں جمع ہو چکی تھیں۔ ان مخلوقات میں ایک خاص پری شہناز تھی جو اس دنیا کی رہنما تھی۔ شہناز نے لالا کا استقبال کیا اور کہا، ہم نے تمہاری دنیا کے بارے میں سنا ہے۔ تمہاری طاقت اور محبت نے وادی کو بدل دیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ تم ہمارے اس نئے جہان میں بھی محبت اور سکون کی روشنی لے کر آؤ گی۔ شہناز نے لالا کو بتایا کہ ان کی دنیا میں ایک قدیم شجاع مخلوق موجود تھی جو اپنی طاقت کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو تاریکی میں بدل دینا چاہتی تھی۔ لالا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کمر بند کی طاقت سے اس مخلوق کا مقابلہ کرے گی اور اس دنیا کو بچائے گی۔ لالا نے اپنی پریوں کی مدد سے ایک عظیم معرکہ شروع کیا۔ وہ اس مخلوق کا مقابلہ کرتی رہی، اس کے جادو کا جواب دیتی رہی اور آخرکار ایک بڑی جنگ کے بعد اس شجاع مخلوق کو شکست دی۔ اس کے بعد اس دنیا میں خوشی کا دور دوبارہ شروع ہوا اور یہاں کی مخلوقات نے لالا کا شکریہ ادا کیا۔ لالا نے اس نئے جہان میں محبت اور امن کے پیغام کو پھیلایا اور دونوں دنیاؤں میں ایک نئی دوستی کی بنیاد رکھی۔
वादी के दरख्त और इसकी अजीब और गरीब दुनिया के दरमियान अब एक जादुई रिश्ता कायम था, जिससे दोनों जहानों के दरमियान ताल्लुक मजबूत हुआ था। इसके बाद लाला ने अपनी दुनिया वापस जाने का फैसला किया, मगर इसका दिल हमेशा उन दो दुनियाओं के दरमियान पिल बन कर रह गया। वो जानती थी कि जहाँ भी मोहब्बत, हिम्मत और ईमानदारी हो, वहाँ जादू की ताकत हमेशा की तरह काम करती है। और इस तरह लाला की कहानी हमेशा के लिए परियों की दुनिया में जिंदा रही, जिससे सीखा गया कि मोहब्बत की ताकत और हर हाल में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा दुनिया के तमाम राजों को खोल सकता है। लाला ने वापस अपनी वादी में आकर परियों को बताया कि वो नए जहान में कामयाबी के साथ वापस आई है। परियां खुश हुई कि उनकी दुनिया में सुकून बरकरार है और मोहब्बत का पैगाम दोनों जहानों में फैल चुका है। लाला ने अपने सफ़र की तमाम कहानियां और इसकी सीख परियों को सुनाई और ये भी बताया कि इसकी कामयाबी का राज सिर्फ इसमें छपी मोहब्बत, ईमानदारी और हिम्मत थी। एक दिन जब लाला दरख्त के नीचे बैठकर अपने कमरबंद को देख रही थी, वो महसूस करती है कि दरख्त की ताकत पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इस दरख्त के पत्ते चमक रहे थे और इसकी जुएं एक नई तवानाई से भर रही थीं। दरख्त की जड़ों में एक नई किस्म का जादू सरायत कर चुका था, जो हर परी को अपने अंदर से नई ताकत देने लगा था। लाला ने सोचा कि शायद दरख्त का ये जादू सिर्फ उन परियों के लिए है जो दिल से नेक और ईमानदार हो। इसने एक दिन परियों के साथ मिलकर एक अजीम महफिल की, जहां हर परी ने अपने दिल की बातें शेयर की और वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेगी। इस महफिल में परियों ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और ये सीखा कि अगर वो सब मिलकर काम करे तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। इसी दौरान एक और अजीब वाकया पेश आया। दरख्त के नीचे एक नया दरवाज़ा खुला, जिससे एक और परी, नूरा आई। नूरा ने बताया कि वो एक दूसरी जादुई दुनिया से आई है, जहां इसने भी मोहब्बत और अमन की ताकत को महसूस किया था। वो भी लाला के साथ मिलकर दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहती थी। लाला और नूरा ने मिलकर एक अजीम सफ़र का आगाज़ किया। वो दोनों दुनिया के मुख्तलिफ कोने कोने में गईं, जहाँ जहाँ जंग और नाचाकी थी, वहाँ अपनी मोहब्बत और ताकत से सुकून और अमन का पैगाम दिया। उनके सफ़र ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया और लोगों ने उनके पैगामात को दिल से कबूल किया। आखिरकार लाला और नूरा की ताकत और मोहब्बत ने एक नई दुनिया की बुनियाद रखी, जहाँ परियां और इंसान आपस में मिलकर जिंदगी गुजारने लगे। इस दुनिया में कोई भी इख्तिलाफ आ जंग नहीं थी, बल्कि हर दिल में मोहब्बत और ताउन की जोत जगाई गई थी। लाला की कहानी अब एक किस्सा बन चुकी थी, जो नस्लों तक सुनाई जाएगी। इसकी जिंदगी ने ये साबित कर दिया था कि अगर दिल में मोहब्बत हो और हर कदम ईमानदारी से उठाया जाए, तो कोई भी राह मुश्किल नहीं रहती। और इस तरह परियों की जादुई दुनिया और इंसानों की दुनिया एक दूसरे के करीब आ गईं और दोनों मिलकर एक खूबसूरत और पुरअमन जिंदगी गुजारने लगे। लाला और नूरा की दुनिया में मोहब्बत, सुकून और ताउन का पैगाम इस कदर फैल चुका था कि अब ये सिर्फ परियों की दुनिया तक महदूद नहीं रहा था। इंसानों ने भी इस जादुई रोशनी को अपने दिलों में बसाया था और दोनों दुनियाओं के दरमियान एक नई, जादुई दोस्ती की बुनियाद रखी गई थी। लाला और नूरा ने फैसला किया कि वो अपने नए मिशन पर भी काम जारी रखेगी। उनका मकसद ये था कि वो और उनकी तमाम परियां लोगों को सिखाए कि मोहब्बत और इत्तेहाद से दुनिया की हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। वो दोनों परियों की रहनुमाई करने के लिए मुख्तलिफ देहातों और शहरों में जाती, जहां वो लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने और दरगुजर करने की अहमियत बताती थी। एक दिन जब वो एक दूर दराज गांव में पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां के लोग आपस में झगड़ रहे थे और उनके दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात थे। लाला और नूरा ने गांव वालों को जमा किया और उनके सामने एक खास पैगाम रखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। हम सब का मकसद एक ही है, अमन और सुकून हासिल करना, लाला ने कहा। नूरा ने इसकी बात को जारी रखते हुए कहा, हम सब की ताकत मोहब्बत में है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारे दरमियान इख्तिलाफात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। गाँव वाले इब्तिदा में शक और शुबा में थे, मगर जब लाला और नूरा ने अपने जादुई कमरबंद का छोटा सा मुजाहरा किया और दिखाया कि मोहब्बत की ताकत किस तरह लोगों के दिलों को नरम करती है, तो गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ गए। वो अपने आपस के इख्तिलाफात को भूल कर एक दूसरे की मदद करने लगे और जल्द ही गांव में सुकून का माहौल कायम हो गया। ये देखकर लाला और नूरा ने दिल से शुक्र अदा किया और अपने सफ़र को जारी रखा।
उनका ये पैगाम अब हर गोशे में फैल रहा था कि मोहब्बत और सुकून के बगैर कोई भी मुआशरा कामयाब नहीं हो सकता। वक्त गुजरता गया और लाला की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। परियों और इंसानों ने मिलकर एक नई दुनिया कायम की जहां अमन, मोहब्बत और ताउन का राज था। दोनों दुनियाओं के दरमियान एक पिल कायम हो चुका था, और इस पिल के जरिए वो हर दिन एक दूसरे से सीखते, मोहब्बत बांटते और नए उफ़ुक़ की तरफ बढ़ते रहे। आखिरकार लाला और नूरा ने महसूस किया कि उनका मकसद मुकम्मल हो चुका था। दोनों दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैल चुका था, और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे की रहनुमाई करती रहेगी, चाहे वो कहीं भी हो। लाला और नूरा की जिंदगी ने ये साबित किया कि मोहब्बत, ईमानदारी और इत्तेहाद में वो ताकत है जो दुनिया के हर कोने में तब्दीली ला सकती है। और इस तरह परियों की जादुई दुनिया और इंसानों की दुनिया हमेशा के लिए एक साथ चलीं, एक रोशन और पुरअमन दुनिया की तश्कील करते हुए। लाला और नूरा की कोशिशों से दुनिया भर में मोहब्बत और अमन का पैगाम फैल चुका था, और वो दोनों समझने लगे कि उनकी मंजिल सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में सुकून कायम हो, बल्कि उनका असल मकसद हर फर्द के दिल में मोहब्बत की ताकत को जगाना था। परियों की दुनिया और इंसानों की दुनिया अब एक दूसरे के करीब आ चुकी थी, और उनके दरमियान राबिते के नए रास्ते खिल गए थे। एक दिन जब लाला और नूरा एक जादुई दरख्त के नीचे बैठकर अपने तजर्बात पर गुफ्तगू कर रही थीं, एक नई परी सुना आई। सुना ने आकर बताया कि वो एक ऐसी जगह से आई है जहाँ की मखलूक मोहब्बत और अमन को समझने में नाकाम रही थी और हर रोज़ जंग और दुश्मनी की हालत में थी। सुना ने कहा कि इस दुनिया में भी मोहब्बत और सुकून की ज़रूरत है, और वो चाहती है कि लाला और नूरा इसकी मदद करे। लाला और नूरा ने सुना की बात सुनी और फैसला किया कि वो इस नई दुनिया में जाएगी और वहाँ की मखलूक को मोहब्बत का पैगाम देगी। जब वो इस दुनिया में पहुंची तो उन्हें यहाँ का माहौल बहुत अजीब लगा। हर तरफ जुटन और तंग नज़री थी, लोग एक दूसरे के साथ बुरा सलूक करते और एक दूसरे से दूर रहते थे। लेकिन लाला और नूरा ने हिम्मत न हारी और मोहब्बत के पैगाम के साथ लोगों से मिलना शुरू किया। लाला ने कहा, मोहब्बत की ताकत से ही हम सब की जिंदगी बेहतर हो सकती है। आपके दिलों में अगर मोहब्बत होगी तो आपका दुनिया का हर दर्द कम हो जाएगा। नूरा ने भी बात की, हम सब की जिंदगी का मकसद एक दूसरे की मदद करना और अमन कायम रखना है। अगर हम सब एक दूसरे के साथ ताउन करें तो कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। शुरुआत में लोग शक व शुबा में थे, लेकिन जैसे जैसे लाला और नूरा ने अपनी मोहब्बत और ईमानदारी से उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाना शुरू की, लोग आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातों पर अमल करने लगे। वो एक दूसरे के करीब आने लगे और दुश्मनी की जगह दोस्ती और मोहब्बत ने ले ली। लाला और नूरा की कोशिशों से इस दुनिया में भी मोहब्बत का पैगाम फैल गया, और वहाँ के लोग एक नई रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जहाँ पहले तक जंगे और इख्तिलाफात थे, वहाँ अब सुकून और ताउन था। दोनों परियों ने इस दुनिया के लोगों को ये सिखाया कि मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब तक हम एक दूसरे के साथ हसन सलूक और एहतराम से पेश आएंगे, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। लाला और नूरा के दिलों में सुकून था कि उनका मिशन मुकम्मल हो चुका था। अब वो जानती थीं कि जहाँ कहीं भी मोहब्बत की जोत जगाई जाए, वहाँ सुकून और अमन का दौर आता है। परियों की दुनिया और इंसानों की दुनिया के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हो चुका था, और हर फर्द इस बात को समझ चुका था कि इत्तेहाद और मोहब्बत ही असल कुव्वत है जो दुनिया को बेहतर बना सकती है। उनकी कहानी न सिर्फ परियों की दुनिया में बल्कि इंसानों की दुनिया में भी सुनाई जाने लगी। लाला और नूरा की मोहब्बत और ईमान की ताकत ने सच साबित किया कि जादू की सबसे बड़ी ताकत दिलों की सफाई, मोहब्बत और हिम्मत में होती है। और इस तरह परियों की जादुई दुनिया और इंसानों की दुनिया हमेशा के लिए अमन, मोहब्बत और सुकून की राह पर गामजन रहे, और दोनों के दरमियान ये जादू हमेशा कायम रहा। लाला और नूरा की कहानी अब एक अफसाना बन चुकी थी जो नस्लों तक सुनाई जाती। उनकी मोहब्बत, हिम्मत और ईमानदारी की ताकत ने दोनों दुनियाओं को एक नई समत दी थी। जहाँ कहीं भी सुकून और मोहब्बत की ज़रूरत होती, लाला और नूरा की रूहें वहाँ पहुँच जाती, अपनी रोशनी से दुनिया के तारीक गोशों को रोशन कर देती। चंद साल बाद जब लाला और नूरा अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में पहुंची, उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया। दोनों परियां चाहती थीं कि दुनिया में मोहब्बत और अमन का पैगाम हमेशा जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उनकी कहानी एक ख़ास दरख्त की शक्ल में जिंदा रहनी चाहिए। वो दरख्त जो कभी लाला के सफ़र का आगाज़ था, वही दरख्त जो अब दोनों दन्नियों के दरमियान मोहब्बत की अलामत बन चुका था।
लाला और नूरा ने दरख्त के नीचे एक खूबसूरत किताब छपाई। इस किताब में उनकी सारी कहानियाँ सीखी और वो तमाम सबक दर्ज किए जो उन्होंने दुनिया भर के लोगों को सिखाए थे। किताब का नाम मोहब्बत की ताकत रखा गया और इसके सफ़हात में हर इंसान और परी के लिए एक पैगाम था। मोहब्बत में कुव्वत है और इस कुव्वत से हर मुश्किल हल हो सकती है। लाला और नूरा ने इस किताब को दरख्त के नीचे दफन किया और कहा, ये किताब वो खजाना है जो हमेशा लोगों के दिलों में रहना चाहिए। हर आने वाला नस्ल इस किताब के जरिए सीखेगा कि मोहब्बत, सुकून और इत्तेहाद की ताकत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। इसके बाद दोनों परियों ने अपनी आखिरी सफ़र पर रवानगी की तैयारी की। जब उन्होंने दरख्त के नीचे एक आखिरी बार नज़र डाली, उनकी आंखों में सुकून था, क्योंकि वो जानती थीं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद मुकम्मल कर लिया था। वो दोनों आसमान की तरफ परवाज़ कर गईं, जैसे चांदनी रात में रात के तारीक गोशे में रोशनी के निशान छोड़ती हैं। वक्त गुजरता गया और दोनों परियों की कहानी पूरी दुनिया में सुनाई जाने लगी। वो किताब जो दरख्त के नीचे दफन थी, एक दिन एक बच्चे ने दरियाफ्त की। जब इसने किताब खोली, इसके अंदर दर्ज तमाम कहानियाँ और पैगामात इसके दिल में आतर गए। बच्चे ने इस किताब को अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर किया और फिर ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। आज भी लाला और नूरा की मोहब्बत की कहानी दुनिया भर में सुनाई जाती है। उनकी कहानी सिर्फ एक अफसाना नहीं, बल्कि एक जीता जागता हकीकत बन चुकी है। एक हकीकत के जब मोहब्बत, ईमानदारी और इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार किया जाए तो हर दिल में सुकून और हर दुनिया में अमन आ सकता है। और यूं परियों की जादुई दुनिया और इंसानों की दुनिया हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब रहे, एक दूसरे से सीखती रहे और मोहब्बत की रोशनी से अपना रास्ता रोशन करती रहे। लाला और नूरा की कहानी को वक्त गुजरता गया और उनकी तालीमात ने न सिर्फ परियों की दुनिया को बल्कि इंसानों की दुनिया को भी बदल दिया था। उनकी मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल हमेशा के लिए एक रहनुमाई बन गई। जिस दिन उनका दरख्तन मोहब्बत सच में एक आलमगीर निशान बन गया, वहाँ पर एक ऐसा माहौल कायम हो गया जहाँ इंसानों और परियों ने मुश्तरका तौर पर अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ दरख्तन मोहब्बत को एक अजीम मकाम समझा जाने लगा। लोग, खा वो परी हों या इंसान, अपने दुख दर्द को हल करने के लिए इस दरख्त के नीचे आकर बैठते। यहाँ मोहब्बत, अमन और सुकून का पैगाम हर आने वाले को मिलता। दरख्त की जड़ों में एक खास ताकत थी और जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती, दरख्त की छाँव में बैठने से वो सुकून और तवानाई हासिल करता। एक दिन एक नौजवान लड़की, आयशा नाम की, दरख्त के नीचे आई। वो बहुत गमगीन थी और इसे ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना था। वो लाला और नूरा की कहानियाँ सुनी थी और इस उम्मीद पर यहाँ आई थी कि शायद दरख्त में छपी कोई जादुई ताकत इसकी ज़िंदगी में सुकून लाए। आयशा ने दरख्त के नीचे बैठकर आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से अपने दुखों को दरख्त की जड़ों में डालता महसूस किया। जैसे ही वो अपनी तकालीफ का बोझ दरख्त पर डाल रही थी, एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, मोहब्बत और ईमान की ताकत को अपने अंदर जानो, तुम्हारी मुश्किलात खुद ब खुद हल हो जाएगी। ये आवाज़ लाला और नूरा की थी और आयशा ने अपने दिल में उनका पैगाम महसूस किया। इससे फौरन समझ में आ गया कि वो अपनी मुश्किलात का हल बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर तलाश करे। इसने अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को तस्लीम किया और फैसला किया कि वो मोहब्बत और ईमानदारी से हर मसले का सामना करेगी। आयशा ने न सिर्फ अपने दुखों को दरख्त के हवाले किया, बल्कि इसने दूसरों की मदद करने का अहद किया। इसके अंदर एक नई तवानाई और जज्बा पैदा हुआ और वो वापस अपने गांव पहुंची, जहां इसने मोहब्बत, इत्तेहाद और सुकून का पैगाम फैलाना शुरू किया। वो लोगों को सिखाती कि जब तक दिलों में मोहब्बत हो, तब तक कोई भी मुश्किल इंसान की ताकत से बाहर नहीं होती। आयशा की कोशिशों से गांव में तब्दीली आना शुरू हुई। लोग एक दूसरे के करीब आए, दुश्मनी खत्म हुई और एक नई दुनिया की बुनियाद रखी गई, जहां मोहब्बत और भाईचारा था। लाला और नूरा की कहानी, जो एक वक्त में एक जादुई सफ़र था, अब एक तहरीक बन चुकी थी। उनकी तालीमात ने इंसानों के दिलों में एक नई रोशनी डाल दी थी और हर फर्द अपने अंदर मोहब्बत की ताकत को महसूस करता था। दरख्तन मोहब्बत हमेशा के लिए एक अलामत बन चुका था, जहां कोई भी आकर सुकून और तवानाई हासिल कर सकता था।